So good morning to all of you and welcome back to my lecture. Today is our topic where we are going to start is Born-Haber cycle. What are you going to study is Born-Haber cycle. Now what does Born-Haber cycle says? It says, see, last time we talked about this type of reaction. When sodium and chlorine combines, it does produces NaCl solid. What does it produce? NaCl solid. During this, there are lots of steps are involved. Last time we talked about three main steps. The first step was सोडियम से जो सोडियम आयन बनता है. For that, the energy required, we call it ionization enthalpy delta H. What have we said? Ionization enthalpy delta H. Second step was chlorine receives one electron and becomes Cl minus, and उस टाइम पे जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी delta H Eg. And the third step which was involved, where two ions combine together, Na plus and Cl minus, which is going to produce crystal lattice of sodium chloride, which is going to produce what? Crystal lattice of sodium chloride. And during that, the amount of energy released, we call it lattice enthalpy. What did we call it? Lattice enthalpy. Now the formation of ionic bond depends upon this lattice enthalpy. More the value of lattice enthalpy, the product is easier will be formed and ionic bond will be very strong. So the value of lattice energy will be more only when there is an attraction between Na plus and Cl minus. इन दोनों के बीच में अगर strong attraction है, जितना attraction ज्यादा है उतना ही एक दूसरे के नजदीक में आएंगे और strong bond बनाएंगे, उतना ही नजदीक में आएंगे और strong bond बनाएंगे. So Born-Haber first of all gave the value of total enthalpy. He tried to study about the enthalpies and the lattice enthalpies, and he gave certain relationship. उन्होंने थोड़े से रिलेशनशिप हमें दिए हैं कि लेटिस एंथैल्पी कैसे डिटरमाइन करना, किस तरीके से डिटरमाइन करना. तो उसके लिए he has given us one cycle. Let us understand that cycle. This cycle is basically based on the principles of thermodynamics, particularly Hess law of thermodynamics. Hess law of thermodynamics says suppose if you have one reaction, let's say reactant is converting to product, one reaction, and this reaction के लिए जो एंथैल्पी चेंज है, it is delta H. And Hess law said that suppose ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, in one step it does take place, then delta H. जरूरी नहीं ये रिएक्शन एक स्टेप में ही हो. Suppose it is taking place in multiple step. Suppose if it does take place in multiple step, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा delta H1, delta H2 and delta H3. ये रिएक्शन दो तरीके से हो रहा है, one step or in multiple step. Whatever the step, whether you take one step or multiple step, it says in both the cases total enthalpy change will be always equal. और other way he said that Hess ने ऐसा बताया था कि यहाँ पे जो मल्टीपल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसका एल्जेब्रिक एडिशन करते हो तो वन स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होती है इट शुड बी इक्वल टू दैट. That was the Hess law. ये Hess law था. ये प्रिंसिपल को यूज करते हुए Born-Haber ने हमें एक रूल दिया, Born-Haber ने एक साइकिल दिया है हमें. Let us understand that. Let us understand that. So for that, what are we going to do? See over here. He has taken one example. What did he say? Born-Haber has taken one example. He has taken the example of sodium chloride. Born-Haber cycle for NaCl. For NaCl, we are going to do something over here. Okay. See, this is the reaction.
When sodium solid combines with half Cl2 gas, it does produce sodium chloride solid. That's the reaction of formation of sodium chloride. That is the reaction of formation of sodium chloride. Now in this sodium chloride, suppose ये एक स्टेप में हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होता है, लेट अस कॉल इट डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. व्हाट डू वी कॉल इट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sodium chloride. And that can be determined, cannot be determined, let's set that thing afterwards. But suppose ये एक वैल्यू है for this reaction, and यही रिएक्शन को हम अलग अलग 5 स्टेप में कर सकते हैं. एक्चुअली ये रिएक्शन 5 स्टेप में होता है. किस तरीके से? सबसे पहले जो सोडियम सॉलिड है वो सोडियम गैस में कन्वर्ट होता है. किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम गैस में. तो यहां पे जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? सब्लिमेशन. नाउ ये जो प्रोसेस हो रही है वो सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही है. उसको हम उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा H सब्लिमेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? डेल्टा H सब्लिमेशन. एंड ऑब्वियसली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये जो एंथैल्पी है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को देना पड़ता है. जब एनर्जी देते हो तब सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है. ये पहला स्टेप है. सोडियम जो होता है वो सीधा सॉलिड के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करने वाला. बराबर ना बेटा? सॉलिड के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता. किसके फॉर्म में रिएक्ट करता है? गैस के फॉर्म में. सो विल कंटिन्यू फर्दर ओवर हियर. ये पहला स्टेप था. सेकंड थिंग, हैव यू नोटिस्ड ओवर हियर मैंने सिंगल Cl नहीं लिखा है. वाई? बिकॉज क्लोरीन कभी भी एटम के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. वो अकेला सिंगल एटम नहीं होता है. वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है? क्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है. वो क्लोरीन प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और इसके ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है हमें. उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हाफ Cl2 ओवर हियर. व्हाट हैव वी टेकन? हाफ Cl2. एंड वी हैव टू ब्रेक दैट बॉन्ड. हम उसको जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तब हमें एक Cl मिलता है. दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोसिएशन. क्या बोलते हैं इसको? करेक्ट और नॉट? डिसोसिएशन करने के लिए हमें यहां पे एंथैल्पी देनी पड़ती है. क्या करना पड़ता है? वी हैव टू सप्लाई एंथैल्पी ओवर हियर बिकॉज बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं. बॉन्ड इसका इजीली टूटता नहीं है. इसके लिए जो एंथैल्पी हम देते हैं उसको हम डेल्टा H d/2 लिखते हैं. सॉरी, नॉट दिस वे, माफ करना, उसको थोड़ा अलग से लिखते हैं इस तरीके से. डेल्टा H d/2. d/2 बीच में लिखना होता है. That's called dissociation enthalpy. क्या बोलते? Sometimes we call it dissociation enthalpy, sometimes we call it decomposition enthalpy because we are breaking it. We are breaking. And obviously ये enthalpy भी कैसी रहेगी? Positive, because आपको bond तोड़ना पड़ता है. Bond तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है. बराबर है कि नहीं? After we got sodium gas and chlorine gas over here, next step में जो होगा ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na+ फॉर्म. उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? आयोनाइजेशन. एंड एंथैल्पी को बोलेंगे डेल्टा HI, एंथैल्पी ऑफ आयन. ये भी एनर्जी आपको देनी पड़ती है. करेक्ट? आर यू फॉलोइंग मी? हमको मिला क्या? Na+. आर यू फॉलोइंग दिस?
यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, द सेम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन विल गेन। क्लोरीन क्या करेगा, उसको गेन करेगा और हमें मिलेगा Cl माइनस। क्या मिलने वाला है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन। या तो हम बोलेंगे डेल्टा एच Eg, और ये नेगेटिव होता है, इसमें एनर्जी बाहर निकलता है। ये पहला एक है जिसमें एनर्जी बाहर निकला है, करेक्ट? आर यू फॉलोइंग दिस? एंड द लास्ट स्टेप में ऐसे होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होके हमें NaCl देता है। क्या देगा, NaCl देता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। जिसको हम बोलेंगे डेल्टा HU। ये भी नेगेटिव होती है। कैसी होती है, आर यू फॉलोइंग दैट? दैट्स क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। यहां पे 5 एंथैल्पीज इन्वॉल्व है डिफरेंट स्टेप में। सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। एंड ये रिएक्शन जब एक स्टेप में होता था तब आपके पास एक एंथैल्पी इन्वॉल्व थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। What does Bonhoeffer says? According to law of Hess law of thermodynamics, he says delta HF has to be the summation of delta H of sublimation, delta H of dissociation plus delta H of ionization enthalpy plus delta H of electron gain enthalpy। ये हमको बताया गया है। आर यू फॉलोइंग दिस? दिस इज Bonhoeffer cycle. Let's study that Bonhoeffer cycle over here. आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है। जो 5 स्टेप्स मैंने बताया आपको, वही 5 स्टेप उन्होंने बताया कि अगर सपोज हम एक स्टेप में करते हैं ये फाइनल रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, then enthalpy of formation is this much. The different steps of formation of NaCl crystal is as follow. Different steps कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप जो है सब्लिमेशन एंथैल्पी, उस टाइम पे एंथैल्पी ये है। सेकंड स्टेप कौन सा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उस टाइम पे ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। द थर्ड वन डिसोसिएशन एंथैल्पी। फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फिफ्थ वन लैटिस एंथैल्पी। And this is our Bonhoeffer cycle. If they ask us short note, we have to explain individual step and we'll have to draw the cycle. बराबर है क्या? एंड फाइनली हमें ये बताया गया है, that is the Bonhoeffer cycle for NaCl.